Um, I just want to welcome all of you to Dayton, Ohio Zoom session. Today, we are very, very fortunate that we have our sweet sister, my older Didi, BK Radha Didi from Lucknow. She is visiting us in Dayton, Ohio from Lucknow. And let's hope one of these days she can come here in person. So a little bit about Didi. Radha Didi is a Brahma Kumari's teacher, instrument, and administrator in the city of Lucknow. Since childhood, she had special interest in studies and sports. In her childhood, she was very much interested in devotion, always gave happiness to everyone, respected the elderly, reflected a lot of tolerance and a lot of virtues and qualities. She came into contact with Brahma Kumaris at a very young age of 18. And then she dedicated herself to the spiritual knowledge. She began her spiritual journey around 37 years ago and has inspired and empowered so many in their spiritual growth and transformation. Radha Didi is the zonal coordinator of the administration of Raj Yoga Education and Research Foundation. Of course, there's a long list of 3 pages which Didi has done and accomplished in her life, done so many conferences, exhibitions, campaigns, fairs, done so many programs, hundreds and thousands of them. But a few of the main things are, that she is basically currently residing in one of the main centers, Atma Chintan Bhavan, which was inaugurated under her guidance and supervision. Lucknow being the capital of Uttar Pradesh, Didi is very well connected to so many politicians, UP state ministers and speakers and MLAs and many, many dignitaries in almost every field. And she involves them, in so many programs. Every single day, literally, they have a program and it's always a success. She has recently also started a new project named Gulzar Upvan. That is a retreat center which Didi is under Didi's guidance. Of course, Baba is the key, but she is the Nimit, and it got inaugurated by a present Chief Minister Yogi Adityanath ji in November of 2019. And of course, this Gulzar Upvan is inspired by Dadi Gulzar ji's name. Didi is very fortunate. Baba once gave her a vardhan that Hindi में स्वयं संतुष्ट होकर दूसरों को भी संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि भव. एक इतनी महान हस्ती जिसे बाबा ने खुद अपने मुख से वरदान दिया हो, वो हमारे बीच में आज हैं. दीदी इज ऑलवेज सबको संतुष्ट करती है और सबको सुख देने वाली आत्मा है. दीदी के लिए तो जो कहें वो कम है. दीदी जो है इतने सारे प्रोग्राम्स वहां पे कराती रहती है. सबके साथ स्वभाव संस्कार मिला के चलने वाली है हमारी दीदी. और हमने तो जितना हमने देखा है दीदी को, तो सबको बहुत, बच्चे से लेके बड़े तक सबको इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान देती है, बहुत स्नेह देती है. 1-2 चीजें जो मुझे दीदी में बहुत अच्छी लगती हैं वो है कि दीदी जो है अथक सेवाधारी है. कभी भी मैंने दीदी को थका हुआ नहीं देखा, चाहे वो 2 घंटा सोए नहीं सोए, और हमेशा मुस्कुराती है. तो दीदी जो है उसके अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तभी तो बाबा ने दीदी को इतनी बड़ी जगह, इतना कुछ संभालने के लिए दिया है, निमित्त बनाया है, क्योंकि बाबा को पता है कि दीदी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं. तो मेरे लिए तो दीदी एक प्रेरणा का स्रोत है, और मुझे पता है बहुत सारी आत्माओं के लिए दीदी प्रेरणा का स्रोत हैं. तो दीदी के लिए तो कुछ भी कहते कहते पूरा दिन इसी में निकल सकता है.
लेकिन आज हम दीदी को वेलकम करते हैं तहे दिल से। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फ्लावर्स आपके लिए हैं एंड थैंक यू। एंड थैंक यू, आप इतने बिजी होके भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो इससे पहले आपको हम बोलें कि आप शुरू करें, हम लोग कुछ लाइनें बाबा के गाने की, गीत की, उससे शुरू करेंगे और फिर उसके लखनऊ का स्क्रिप्ट शेयर करेंगे। हाँ, तो इसके अभी ना गाने से पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आप सबको जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर कहे जाने वाले गोमती नदी के किनारे बसे लखनऊ के गोमती नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय राधा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1964 में कर्नाटक के हुबली शहर में हुआ। बाल्यकाल से आपको पढ़ाई एवं खेलकूद में विशेष रुचि थी। भक्ति भाव, सबको सुख देना, बड़ों का आदर करना, सहनशीलता, रमणीकता आदि गुणों से आप भरपूर रही हैं। 1983 में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला और साथ-साथ आपने लौकिक पढ़ाई बीए तक पूरी करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। वरिष्ठ दादियों के दिशा निर्देश से आप 1984 से मंगलोर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, सूरतगढ़ आदि सेवा स्थानों पर अपनी सेवाएं देती हुई 1991 से लखनऊ की विशेष सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। आपने नवयुग निर्माण के कार्य में अपना योगदान देते हुए अनेक कार्यक्रमों जैसे फ्यूचर ऑफ पावर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, शांति यात्रा व स्वप्रबंधन कला सेमिनार इत्यादि का आयोजन किया। वर्तमान समय में 6 सेवा केंद्रों, 100 गीता पाठशालाओं, 20 टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 4000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स आपके सानिध्य में अपने जीवन को मूल्यवान बना रहे हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू ओहायो एंड आप अब शुरू कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति, ओम शांति। आपके लिए गुड मॉर्निंग है। सुनने वाले सभी ओहायो के गुलदस्ते हैं। भगवान के बगीचे के सभी मुस्कुराते हुए खिले हुए फूलों को लखनऊ की धरनी से, लखनऊ का ईश्वरीय परिवार स्पेशल आपके लिए भी ये फ्लावर का बंच लेकर के आए हैं। स्पेशली आपके लिए है ये। जैसे ये खिला हुआ फूल है, आप सब बाबा के विशेष रत्नों के लिए हम लखनऊ वासियों की तरफ से आए हुए पुष्प को स्वीकार करते हुए आज बहुत सुंदर आपने एक सब्जेक्ट दिया है, कैसे हम परमात्मा पिता बाबा का दिल तख्त नशीन बने। ऐसे तो बाबा बच्चों को कहते हैं दिलाराम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे। हर बच्चा बाबा के दिल में समाया हुआ, दिल को आराम देने वाला दिलाराम। दिल को आराम, जैसे दिल में उस राम को बिठा करके हम अपने दिल को आराम देने वाले परमात्मा पिता की छत्र छाया में रहने वाले, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, विश्व की सभी आत्माओं को प्यारे बाबा ने सब इतना बड़ा तख्त दे दिया है
जिसमें सभी बच्चे समा सकते हैं। सतयुगी तख्त तो गिने चुने बच्चों को ही मिलेगा, लेकिन संगम युगी तख्त पर हर बच्चे का अधिकार है। हर बच्चा बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकता है। अब भगवान ने तो हम सबको अधिकार दे दिया, लेकिन मेरी कैपेसिटी चाहिए, मेरी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति चाहिए, उस तख्त पर मैं कायम रह सकूं। जैसे आपने देखा ना, बच्चे को आप गोद में बिठाओ, कुछ बच्चे क्या होते, माँ बाप के गोद में बैठ जाते, कुछ बच्चे जैसे बिठाओ बार बार नीचे उतरते, कुछ बच्चे बार बार नीचे उतरते हैं। माँ बाप तो अपने गोद में बिठा लेते हैं। ऐसे हमें आज चेक करना होगा, भगवान ने तो हम सबको इतना बड़ा दिल तख्त दे दिया है, क्या हम उस दिल तख्त पे कायम बैठने वाले हैं या बार बार उतरने वाले हैं? तो कैसे हम दिल तख्त नशीन बने, मैंने आज 6-7 पॉइंट के ऊपर विशेष प्रकाश डालना चाहूंगी। आप एक सीढ़ी के रूप में, क्योंकि दिल तख्त पर विराजमान होने के लिए एक दिन का पुरुषार्थ एक चीज से नहीं, ये बहुत सारे पुरुषार्थ का एक पैकेज है, जो उस पुरुषार्थ की हर सीढ़ी को चढ़ करके हम उस परमात्मा के दिल तख्त पर अपना स्थान बना सकते हैं। उस पैकेज में सबसे पहले हमें दादी जानकी जी याद आती है। दादी जी के हमेशा बोल क्या थे, सच्चा दिल साफ दिल, है ना? तो हमेशा दादी जी की वो आवाज और हाथ आपने देखा होगा ना, ये बड़े बड़े हाथ करके सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप और हम सब ने दादी जानकी जी को ही देखा, कैसे दादी जी बाबा के दिल तख्त पर विराजमान थी, इन आंखों से मैं दिखाई देता था। तो सबसे बड़ी चीज दादी जी की सच्चाई और सफाई। दादी जी की जितनी भी क्लासेस आपने सुना होगा, एक पॉइंट जरूर सत्यता को लेकर के अवश्य ही आता था। तो ये फर्स्ट स्टेप है, बाबा के दिल तख्त नशीन अगर हम बनना चाहते हैं तो जीवन की सच्चाई चाहिए। सत्यता माना ट्रांसपेरेंसी। ऐसे तो विदेश के बच्चों की बाबा सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी जो महिमा गाते हैं विदेश के बच्चों के लिए, साफ दिल वाले। तो उनमें से आप सभी हो ना, विदेश के जो भी अभी बैठ करके सुन रहे हैं, शिव बाबा के प्यारे बच्चे, वास्तव में आप सभी की महिमा स्वयं भगवान ही कहता है। भगवान क्या कहते हैं कि विदेश के बच्चे मेरे सच्चे दिल वाले, साफ दिल वाले। तो ऐसे सच्चे दिल पर साहेब राजी कहा गया। जितना हमारे अंदर सच्चाई और सफाई, अर्थात जो हम थॉट क्रिएट करें, जो हम बोले, जो हम करें, उसमें समानता, अंतर ना हो, सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ, हमारे बीच में हार्मनी नहीं होगी तो हमारे अंदर एक ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? तो हमारे सोच में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में, हमारे रहन में, सहन में एकदम सफाई अर्थात ट्रांसपेरेंसी, सबके बीच में एक हार्मनी हो, ये सच्चाई। और जितनी साफ स्वच्छ चीज होगी, जो चीज जैसी है वैसे दिखाई देगी। एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, जितना स्वच्छ पानी होता है तो जितना साफ पानी होगा आप उसकी अंदर की गहराई को देख सकते हो। पानी अगर गंदा होगा तो अंदर वाली चीज दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे जितने हम साफ शुद्ध स्वच्छ बनते चले जाएंगे, अंतर आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज, नेचुरल क्वालिटीज जो है वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसके लिए हमें पुरुषार्थ या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
स्पष्ट मुझे मेरी आंतरिक शक्ति का एहसास, स्पष्टीकरण, स्पष्ट दिखाई देने के कारण मुझे अपने इस पुरुषार्थी जीवन में सरलता के साथ, सहजता के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बाबा का दिल तख्त नशीन बनना है तो सबसे पहले सच्चाई और सफाई। सेकेंड वन, आज्ञाकारी। घर में भी देखा होगा, दो बच्चे आपके, उसी माँ बाप ने जन्म दिया है दो बच्चों को। एक बच्चा हर माँ बाप का कहना मानता है, दूसरा बच्चा नहीं मानता है। माता पिता ने, एक ही माता पिता ने दोनों को जन्म दिया है, लेकिन कौन सा बच्चा माँ बाप के दिल पे चढ़ेगा? जो आज्ञाकारी होगा। तो जैसे लौकिक में आज्ञाकारी बच्चे माँ बाप के दिल पे चढ़ते हैं, ऐसे परमात्मा पिता ने भी सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक हमें श्रीमत दी। कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा, कोई ऐसी हमारी दिनचर्या नहीं होगी जिसके बारे में बाबा ने आज्ञा न दी। तो परमात्मा के द्वारा प्राप्त आज्ञाओं की पालना करना, हमने आज्ञा की पालना करना माना हम दिल के नजदीक जा रहे, दिल के ऊपर जगह बना रहे। तो आज्ञा की पालना करना, चाहे सवेरे अमृत वेला उठना, बाबा की मुरली की पढ़ाई पढ़ना, सारे दिन के कर्म क्षेत्र में कर्म योगी बन करके कार्य करना, ट्रस्टी निमित्त बन करके अपने घर व्यवहार को निभाना, कर्म करते हुए भी ईश्वर की याद रहना। तो सेवा के क्षेत्र में भी अनेकों के कल्याण के लिए और अपने कर्मों के द्वारा बाबा के गुणों की प्रत्यक्षता करना। और रात को सोते समय में भी ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा, ऐसे कोई गुरु गोसाई नहीं होंगे, सवेरे उठने से लेकर रात को सोना, और सोए भी तो हमें कैसे सोना है, ये संपूर्ण हमारी लाइफ को श्रेष्ठ बनाने की एक श्रेष्ठ राय सलाह दी जाती है। एक परमात्मा पिता ही है, तो हर कर्म के लिए, हर समस्या के लिए, हर परिस्थिति के लिए, जैसे कि पहले से भगवान की दी हुई शिक्षाएं हैं, और हम अनुभव यही कहता है, जितना हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते रहेंगे, जितना हम परमात्मा की शिक्षाओं की आज्ञा का पालन करते रहेंगे, तो ये आज्ञाकारी बनना ही दिल तख्त नशीन बनाता है। तो दूसरी पॉइंट रही आज्ञाकारी। तीसरी बात पवित्रता। कहते हैं प्रभु मिलन की सीढ़ी है पवित्रता। उस परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट कौन सी सुई होगी? अगर उसमें जंग लगा हुआ होगा तो जंग लगी हुई चीज ईश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होगी। जिस सुई पे जंग उतरी हुई होगी तो मैग्नेट की तरफ खींची हुई चली जाएगी। ऐसे ही परमात्मा का दिल तख्त कोई साधारण तख्त नहीं, संसार के चाहे कितने भी तख्त हो, उन सब से श्रेष्ठ तख्त। इस तख्त पर विराजमान होने के लिए प्योरिटी चाहिए, पवित्रता, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। मनसा की भी पवित्रता, वाचा की भी और कर्मणा की भी। मनसा की पवित्रता अर्थात मन की श्रेष्ठ स्थिति, मन अपनी सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च विचारों से युक्त, सर्वश्रेष्ठ चिंतनों से युक्त, तो ईश्वरीय ज्ञान युक्त चिंतन करना, यही तो मनसा की पवित्रता है। तो मनसा की अपवित्रता, ज्ञान से अलग व्यर्थ बातें जिससे मेरा कोई लेन देन नहीं, उन चिंतनों के बारे में सोचना अपवित्रता। तो मनसा की पवित्रता अर्थात मन जो श्रेष्ठ ज्ञान युक्त सोच चिंतन चलाए। वाचा की पवित्रता माने वाचा में हम
किसी को दुख देने वाले बोल, किसी को तंग करने वाले और किसी को भी नीचे उतारने वाले, उमंग गुस्सा को कम करने वाले बोल न बोले। सदैव इस मुख से ज्ञान युक्त चिंतन, ज्ञान युक्त बोल ही निकले। तो ये हमारे बोल की पवित्रता है। और कर्म की पवित्रता, कर्म अर्थात बाबा ने देखो कर्म क्षेत्र में हम सबको क्या दिया है? कभी कर्म सन्यासी तो नहीं बनाया, हमें कर्म क्षेत्र में तो उतरना ही है। कर्म क्षेत्र में आते हुए हम अपने कर्मों को दिव्य कैसे बनाए, कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाए, कर्मों को महान कैसे बनाए। तो हर कर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया, समझ दी है। उस समझ के आधार पर और भगवान ने हमको निमित्त ही क्या बनाया, हमारा कर्म का उद्देश्य क्या है। चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हमारा कर्म का उद्देश्य नहीं है। हमें भगवान ने उस कर्म क्षेत्र पर ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बिठाया है। हम सभी परमात्मा के दूत है, रिप्रेजेंटेटिव। चाहे आपका घर है, घर में भी आप रहते हो तो उस घर के सदस्यों के बीच में आप एक रिप्रेजेंटेटिव। कर्म क्षेत्र में, जॉब में, बिजनेस प्लेस में आप सभी एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसे अपने आप को रोल मॉडल बना करके कर्म क्षेत्र में रखना, यह है कर्मों की सेवा। क्योंकि ज्ञान हमें सिर्फ सदा मुख से किसी को प्रभावित नहीं करेंगे, तो हम अपने कर्म क्षेत्र में अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ज्ञान सुनना समझना। तो फर्स्ट स्टेप है सुनना, सेकंड स्टेप है उस ज्ञान को हमने समझा, ज्ञान को समझने के बाद उस ज्ञान को मैंने हजम किया, ज्ञान को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो ज्ञान जब मेरी लाइफ में अप्लाई हो जाता है, मेरा प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा, ज्ञान गुणों में परिवर्तित हो जाता, मेरे हर कर्म में वो दिखाई देने लगता है। तो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप ही ये है, गुणों के द्वारा। तो गुणों के द्वारा हम परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करना, ये है कर्म की पवित्रता। तो जितना हम अपने जीवन में इन तीनों चीजों के ऊपर अटेंशन, मनसा का भी, वाचा का भी, कर्म का भी, और हमारे मन में कदापि द्वंद्व ना हो, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे हैं, अगर हमारे आपसी द्वंद्व होगा, आपसी हार्मनी नहीं होगी, तो ये प्योरिटी नहीं। प्योरिटी में जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा में समानता हो, तो ऐसे प्योरिटी, ऐसे पवित्रता जो हमें परमात्मा के दिल तक नशीन बनाने वाला, दिल पे जगह देने वाला है। तो मैंने ये सारी चीजें, हम अपने आप सब ने भी दादियों को देखा होगा, दादियों को हमने इन आंखों से देखा है। इसी संसार के वो भी लोग हैं, इसी मनुष्य की तरह ही तो है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन की इन विशेषताओं से लगता था ये भगवान के दिल पे बैठे हुए हैं। उनके मुख से दिल से आवाज, बाबा शब्द भी जो निकलता था, ऐसे नहीं कि मुख से निकल रहा, दिल से निकलता था, बाबा ये शब्द निकलता था। ऐसे हमारी दादियां जो आज हमारे सामने सैंपल एग्जाम्पल है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम दिल तक नशीन कैसे बने। नेक्स्ट है अथक पद। मैंने प्योरिटी को अप्लाई कर लिया, जितना मेरी लाइफ में प्योरिटी आती चली जाएगी और थकावट दूर आएगी। आप बताइए, किसी भी व्यक्ति की थकावट क्या हो जाती है, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट कर्म, यही थकावट। और थक क्यों है हम लोग, जिसके लिए समर्पित है। उस सत्यता को हमने जान लिया, सत्यता को हमने पहचान लिया, सत्यता के लिए हम समर्पित है, सत्यता के लिए डेडिकेटेड है। तो जहाँ डेडिकेशन होगा, वहाँ थकावट कैसे होगी। जैसे दीदी अभी शुभ्रा बहन हमारी बता रही थी, हमने दीदी को थकते हुए नहीं देखा,
क्योंकि हमारी अपना कार्य, अपनी जिम्मेवारी, हम थके क्यों? क्योंकि हमने खुशी खुशी से इस कार्य को चुना है और हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। भगवान ने हमें अपने दिल में जगह दे रखी है, तो जो दिल में बैठा हुआ होगा उसको थकावट कैसे होगी? तो अथकपन, ये थकावट से मुक्त होना, ये भी भगवान के दिल में जगह बना देता है। हमने ब्रह्मा बाबा के लिए सुना हुआ है, दादियां क्या सुनाती है, जब कोई दादियां कहीं टोर करके बाबा के पास आ जाती थी, आने के बाद जैसे ही आकर के माउंट आबू पहुंचते थे, बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाते थे और बाबा तुरंत, बाबा बच्चे से मुलाकात करते ही नेक्स्ट प्रोग्राम दे देते थे। नेक्स्ट आते ही, अभी ट्रेन से उतर के आके स्नान पानी करके बाबा से मिले ही है, तुरंत फलानी जगह आपको जाना। कुछ बच्चे क्या कहते थे, बाबा अभी कपड़े सुखाएंगे, आज ही तो आए कल। और कुछ बच्चे, बाबा ने कहा मना, तुरंत हाँ बाबा, जी बाबा। तो ये बाबा से सच्चा स्नेह जहाँ होगा वहाँ अथकपन होगा, और जो अथक हो करके बाबा की उस आज्ञा की पालना करने वाला बच्चा, तो ऑटोमेटिकली क्या, उस बच्चे के अथकपन ने भगवान के दिल में ऑटोमेटिकली जगह बना ली, चाह करके नहीं। जैसे भगवान ने कहा वैसे ही उस बच्चे ने अथक बनकर, क्योंकि दादियों को हमेशा रहता था हमें सुनाने वाला कौन है, हमें कहने वाला कौन है। तो इस आज्ञा ने, इस अथकपन ने उनको दिल तक नशीन बनाया। नेक्स्ट है शुभ भावना। प्यारे भाइयों बहनों, भगवान के दिल में हमें जगह बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि इंसान से भी प्रिय बनना होता है तो कोई व्यक्ति भी, कौन सा व्यक्ति हमको अच्छा लगता है? वही व्यक्ति जो हमेशा हमारे प्रति, दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचने वाला। इंसान की पसंद भी क्या है? एक इंसान की पसंद भी एक अच्छी सोच है। तो भगवान की पसंद कैसे होगी? तो भगवान है ही कल्याणकारी, भगवान है ही मंगलकारी। तो उस कल्याणकारी परमात्मा पिता को कौन से बच्चे प्रिय? जो बच्चे सदा शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति, क्योंकि हमारा पिता विश्व कल्याणकारी, वो विश्व के कल्याण के लिए सृष्टि पे आए हुए हैं। जो बच्चे अपनी शुभ भावना, शुभकामनाओं के द्वारा भगवान के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बच्चे हैं, उन बच्चों को भगवान अपने दिल में जगह दे देगा। तो शुभ भावना और शुभकामना, अंदर के भाव कैसे हो, अंदर की हमारी भावना कैसी हो, उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर भाव और भावना को लेकर के कितनी सुंदर सुंदर मुरलियां चलाई हुई है। अंदर हमारी सूक्ष्म जितनी श्रेष्ठ स्मृति होगी, तो स्मृति के आधार पर हमारे भाव जागृत होंगे। जैसे हमारे भाव होगी वैसे हमारी भावना होगी। तो स्वयं के श्रेष्ठ भावनाओं का जो बल है, भावनाओं का जो पूंज है, स्टॉक है, ये स्टॉक हमें ईश्वर अपने दिल में जगह देने के लायक बना देता। तो इसीलिए ये जो वर्तमान समय चल रहा है, तो वास्तव में इस वर्तमान समय चारों तरफ भय, चिंता, परेशानियां, अनसर्टेनिटी हम सब जो देख रहे हैं, तो ये चारों तरफ के ऐसे वातावरण में बचने का सबसे बड़ा साधन ही भगवान का दिल तक। हम तो हंसी हंसी में कहते हैं दुनिया में वाटर प्रूफ बन गया, फायर प्रूफ बन गया है, बुलेट प्रूफ बन गया है। तो इन सब चीजों के प्रूफ वाली जैकेट्स बना दिया, गाड़ियां बना दिया, कई चीजें बना रही, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव सोच, इन सब के प्रूफ वाली चीज तो है ही नहीं। तो भगवान ने हम सबको
ये शुभ भावना का कवच दे दिया। तो जो शुभ भावनाओं से युक्त होगा वो कहाँ बैठेगा? परमात्मा पिता के दिल में बैठेगा। इससे बढ़ करके सेफ्टी का साधन कहाँ हो सकता है? चाहे कितने भी पैसे लगा करके हम सेफ्टी के साधनों को अपनाएं, कितने भी पैसे लगा करके सेफ्टी कवच हम खरीद भी ले, लेकिन भगवान के दिल तक जैसा साधन और कहीं नहीं मिल सकता। तो ये सच्चा दिल जब दिल पर विराजमान तभी होंगे जब मेरे पास शुभ भावनाओं का स्टॉक होगा। ये एक दिन से नहीं, एक दिन से पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत समय का अभ्यास। और शुभ भावनाओं का सोर्स क्या है हम सबके पास? रोज की बाबा की मुरली, भगवान की मुरली के अलावा और कोई सोर्स नहीं है जो पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स हमारे माइंड को सप्लाई कर सके। संसार में कितना भी आप घूम करके आइएगा, इतना पॉजिटिव, इतने पावरफुल थॉट्स सिर्फ मुरली के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकते हैं। जब मुरली हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, हमारा सांस बन जाएगा, मेरे जीवन का आधार बन जाएगा, तो जब मुरली का चिंतन और मनन जितना होगा उतना मेरा मन शुभ भावनाओं से युक्त होगा। अगर मुरली के अलावा और चिंतन मन के लिए, तो बाबा ने बहुत सुंदर एक साधन ही तो दे रखा है। तो जितना मुरली के साथ चिंतन और मनन में व्यस्त होने का अभ्यास करेंगे, इसको कहा जाता है ना मक्खन, जितना हम ज्ञान का मनन और चिंतन करेंगे मक्खन निकलेगा। मन के थन से हमें क्या निकालना है? अमृत निकालना। जितना हम मनन चिंतन में लगे रहेंगे, मंथन में लगे रहेंगे, उतना हमारा मन शुभ भावनाओं से, और उसी से ही शुभ भावनाओं का ही एक प्रोटेक्शन हमारे चारों तरफ ओरा भी क्रिएट, शुभ भावनाओं का ही तो रिजल्ट है, एक ओरा क्रिएट हो जाएगा। तो वो रिफ्लेक्शन करेगा, दूसरों को दूर से अनुभव होगा कि पॉजिटिव थॉट्स का एक ओरा इनके पास है। तो वो अट्रैक्ट इंसान को भी करेगा, तो भगवान के दिल में जो बैठने के लिए बहुत सहज साधन बन जाएगा। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, शुभ भावना के ऊपर हमारा फुल अटेंशन, ये हमें दिल तक नशीन बनाएगा। नेक्स्ट टाइम आप सब ने शायद महाभारत को और रामायण को पढ़ा होगा। गोप गोपियों का वर्णन आता है। जब गोप गोपियां भगवान को याद करती थी, कोई फोटो रख करके याद नहीं करती थी, बस सच्चे दिल से जुड़ी हुई थी। चाहे मीरा की भी बात करना होगा आपने, बस दिल में एक ही बैठा हुआ था। ऐसे लवलीन अवस्था, जितना परमात्मा से सच्चा अनकंडीशनल लव होगा, सच्चा निस्वार्थ प्रेम, लेन देन वाला नहीं, गिव एंड टेक वाला नहीं, सिर्फ अनकंडीशनल लव, परमात्मा से सच्ची प्रीत। तो वो सच्चा प्रीत, सच्ची लगन हमारी जितनी लवलीन अवस्था होगी, भगवान के दिल पर विराजमान हो पाएंगे। तो ये लवलीन अवस्था प्रभु के दिल तक नशीन बनाने का आधार बन जाएगा। तो प्यारे भाई बहनों, तो जहां भगवान से सच्चा प्यार होगा, किसी मीडिएटर की भी जरूरत नहीं, किसी साधन की भी जरूरत नहीं। चाहे रिकॉर्ड बजे न बजे, फोटो हो या न हो, लेकिन सच्चा और साफ दिल, तो आप और बच्चों के बीच में, भगवान और बच्चों के बीच में, दोनों के बीच के संबंध का आधार ही क्या है? सच्चा दिल ही तो है। सच्चा दिल का बाइंडिंग, प्यार। वो प्यार इतना दूर होते हुए भी कोई बाबा का बच्चा ये नहीं कहता भगवान बहुत दूर रहता है। हम तो और ही गीत क्या गाते हैं, तुम तो यही कहीं हो बाबा, मेरे आस पास हो। तो भगवान से आस और पास का अनुभव क्या हुआ? उसका आधार बाबा। देखो, लैला मजनू को याद करते, हीरा रांझा को याद करते, कारण क्या?
वो देहधारी होते हुए भी एक दूसरे से सच्चा प्यार था। तो सच्चा प्यार होने के कारण एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन था। तो यहाँ हम भगवान जो परमात्मा प्यार का सागर है, वो उस प्यार के सागर के साथ में आत्मा का प्यारा संबंध होगा, तो आत्मा जो उस लव में लीन अवस्था का, उसके बुद्धि में और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उस लवलीन अवस्था की स्थिति हमें अपने परमात्म दिल तक नशीन बनाए। तो लीन अवस्था के लिए पहाड़ जैसी बात भी क्या होगी, रुई बन करके दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड आया, सारे विश्व के अंदर ये बीमारी फैली हुई, तो इतनी बड़ी दुनिया के लिए इतना बड़ा न्यूज है, दुनिया के लिए इतनी बड़ी परिस्थिति है, और जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, बाबा से जुड़े हुए बच्चे हैं, इतनी बड़े ते बड़ी पहाड़ जैसी बात भी हम और आप सब ने कैसे अनुभव किया। पहाड़ थोड़ी, ये तो राय क्या रुई बन गई। और इतनी बड़ी बात भी हमारे पुरुषार्थ की उन्नति का आधार हमने बनाया। कारण उस परमात्मा से सच्ची प्रीत होने के कारण बड़े ते बड़ी बात भी, बड़े ते बड़ी समस्या भी हमें बड़ी बात नहीं लग रही, छोटी। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, प्यार के पीछे बड़ी बात छोटी हो जाती। ऐसे ही परमात्मा से सच्ची लगन, सच्ची प्रीत, सच्चे प्यार ने बड़े ते बड़ी बात को भी सहज करके लव में लीन अवस्था का अनुभव कराया। और फिर भगवान के प्रति हम वफादार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वफादारी। वफादारी क्या है? अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आए थी पॉइंट। बाबा ने कहा, आप जो है जैसे है, आपको मैंने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने आपको मैंने पसंद कर लिया। अब मेरी वफादारी क्या है? मेरी वफादारी, भगवान ने मुझे चुन लिया, अब मुझे भी उतने ही सच्चे दिल से, सच्चे और साफ दिल से, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, मन में बुद्धि में। जैसे अर्जुन के लिए क्या दिखाते हैं? अर्जुन ने इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई में गीता का ज्ञान 5 पांडवों के बीच में भी भगवान अर्जुन को चुना, अन्य किसी को नहीं चुना। अर्जुन को ही निमित्त बना करके गीता का ज्ञान दे दिया। 5 पांडवों ने जो महाभारत की लड़ाई जीत ली, कहानियां सुनी होगी आप सबने, उसका आधार क्या है? उसका आधार, उन्होंने एक परमात्मा को सहारा बनाया था, वफादार थे एक के प्रति। अनेकों का सहारा उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ एक का सहारा लिया। एक बल, एक भरोसा, एक नाम, इकोनॉमी। जैसे बाबा ने हम सबको एक 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 का पाठ पढ़ाया, तो एक नामी रहेंगे, इकोनॉमी रहेंगे, और एक बल रहेगा, एक भरोसा, एक बुद्धि में रहेगा। तो बुद्धि का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बुद्धि कॉन्सेंट्रेट होकर एक की तरफ जब बुद्धि जुड़ जाती है, एक से शक्ति की प्राप्ति होने लगती है, एक से संबंध जब जुड़ जाता है, तो एक के द्वारा हमारी लाइफ के अंदर पावर्स आने लगती है। आत्मा जब शक्तिशाली बनेगी और आत्मा सब बातों से एक से संबंध जुड़ जाएगा, जिससे संबंध जुड़ेगा, बुद्धि कहाँ चली जाएगी। इतना इतना हम मन से, बुद्धि से हल्के होते जाएंगे, तो परमात्मा पिता के दिल तक नशीन होते चले जाएंगे। तो भगवान की जगह में दिल बनाने, जगह बनाने के लिए दिल में हमें एक बल, एक भरोसा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अनेकों के साथ हम दिल में नहीं बैठ सकते। एक सच्चे प्यार, सच्चे लगन के साथ ईश्वर के दिल में हम जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट है, भगवान को चाहिए निरअहंकारी बच्चे। जितने हमारे अंदर नम्रता का गुण होगा,
जगह बनाने के लिए, सच्चे दिल पर बैठने के लिए नम्रता, क्योंकि दिल एक ऐसी सूक्ष्म जगह है। ऐसे भी हार्ट देखो, बॉडी के अंदर इतना सूक्ष्म पार्ट होता है और वो दिल क्या करता है, निरंतर धड़कता रहता है। शरीर का एक पार्ट ऐसा है, निरंतर हमारे लिए धड़कता रहता है, हमारे लिए कार्य करता रहता है। तो ऐसे भगवान के लिए निरंतर सेवाधारी बनने वाले और निरंतर भगवान के कार्य में अभिमान और अहंकार को त्याग, नम्रता माना सूक्ष्म में भी मैं और मेरापन ना हो, नम्रता के स्वभाव को, नम्रता के संस्कारों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करके, नम्रता का एग्जाम्पल बाबा कितना सुंदर देते हैं। जो नम्र होगा वो फलों से लदे हुए वृक्ष के समान होगा, छाया भी दे रहा है, साथ में फल भी दे रहा। अभिमान और अहंकार वाला व्यक्ति न फल देता न छाया देता है, और इंसान से भी दूर, भगवान के पास तो क्या, इंसान से भी वो दूर होता जाएगा। तो बाबा के दिल में जगह हमें बनाना है, तो हमें अपने जीवन के अंदर नम्रता के गुण को, फ्लेक्सिबिलिटी, इतना हम फ्लेक्सिबल बने तो फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के साथ भी हमें एडजस्टिंग पावर सिखा देते हैं। इतना हम फ्लेक्सिबल बनेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ हम एडजस्ट होकर के चलेंगे। तो एडजस्टिंग नेचर, एक्सेप्टेंस, ये हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा होगा। जितना फ्लेक्सिबल बनेंगे, ये चीजों से इंसान के साथ क्या भगवान के दिल में भी जगह बनाएंगे। तो ये सारी चीजें परमात्मा पिता के दिल तक नशीन बनने के निशानियां। अभी हमें ये सारे पॉइंट्स तो मिले, हमें पता है मैं सचमुच में भगवान के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ, तो ये हमें आंकलन करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। क्या बाबा ने जो मुझे ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी का पाठ पढ़ाया, कितने परसेंटेज में इसको अपने लाइफ में अप्लाई किया हुआ। जितना जितना मैं अपने जीवन में इन गुणों को धारण करती चली जाऊंगी, दिल तख्त नशीन। अब दिल तख्त नशीन बन गई हूं, उसकी निशानी क्या, कैसे बना जाता वो तो आपने सुन लिया। भाई ये पुरुषार्थ हमारा होगा, आज्ञाकारी होंगे, ईमानदार होंगे, पवित्रता होगी, हमारे अंदर अथकपन होगा, शुभ भावना, लवलीन अवस्था, वफादारी, नम्रता, ये सारी चीजें हमें भगवान के दिल तक नशीन बनाने वाली। तो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो क्या सचमुच में भगवान के दिल में मेरी जगह बन चुकी है, उसकी निशानी क्या है। तो दिल में बैठा हुआ होगा, सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, सभी को अनुभव तो होगा। जिस समय बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं, उस समय सबसे बड़ी निर्भय होगी। भगवान के दिल तख्त नशीन बच्चे कभी भय के वश नहीं होंगे, निर्भय, निश्चिंतता का अनुभव होगा। उनके जीवन से क्यों, क्या, कैसे, वैसे के प्रश्न समाप्त होकर के दिलाराम बाप को दिल में जगह जो बनाने वाली आत्मा, निश्चिंतता, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इस समय में। अगर आज के समय में सबसे बड़ा धनवान पैसों से नहीं आंका जा रहा है, इस समय अगर वो अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ में निश्चिंत है, उस सबसे बड़ा धनवान है, मूल्यवान व्यक्ति है। तो जब बाबा के दिल में हम जगह बना करके दिल तख्त नशीन बनेंगे, तो हमारे अंदर एक निर्भयता का गुण आता चला जाएगा। किसी बात की चिंता, फिकर, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों, क्या, कैसे, वैसे, जैसे हमारी गुलजार दादी जी कहते थे ना, 5 के, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये जो 5 क के शब्द क्या हो जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। मेरी डिक्शनरी से ये शब्द सारे गायब होते चले जाएंगे, क्योंकि सतयुगी दुनिया जहां हमें जाना है,
उस दुनिया में तो बहुत छोटी सी डिक्शनरी होगी, बहुत कम शब्द होंगे। तो ये मुझे चेक करना होगा, क्या मेरी लाइफ में भी ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी बातें डिलीट होती चली जा रही है? मेरी डिक्शनरी भी नेगेटिविटी से, वेस्ट थॉट से खत्म होती चली जा रही? ये अपने आप को चेक करना होगा। तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनने की निशानी, ये हम निश्चिंतता का अनुभव, बेफिक्र बादशाह। दादी जानकी जी कहते थे ना, किस्सा खाली है लेकिन फिर भी हम इस मुल्क के माली हैं। दोनों हाथ खाली, किस्सा खाली, और हम इस मुल्क के माली। अर्थात नशा, निश्चय और नशा, हमेशा नशे में रहेंगे, हमेशा खुशी, एक नेचुरल रूप में खुशी की अनुभूति होगी। नेचुरल, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल, दिल तख्त नशीन बच्चे नेचुरली अपनी लाइफ के अंदर खुशी, डिपेंडेंट नहीं होगी। किसी चीज को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो आत्मा का ये नेचुरल नेचर इमर्ज रूप में रहेगा। तो ऐसे खुशनुमा, ऐसी अवस्था, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। तो यही तो हम चाहते हैं। लाइफ में हम क्या चाहते हैं? आखिर मनुष्य, हम सबका उद्देश्य क्या है? हम बाबा के घर में आए भी हैं तो जरूर हमारा यही तो लक्ष्य है। सब कुछ करते हुए, सब संबंधों में रहते हुए, ये हल्का रह करके सबके साथ खुशी का हम अनुभव करें, सबके साथ प्रेम का अनुभव करें। आखिर यही तो हमारा उद्देश्य है ना। तो ये बाबा के दिल तख्त नशीन बनने की निशानी। तो प्यारे भाई बहनों, अभी अपने आप को हम चेक करें, अपने आप को हम देखें को कितना परसेंटेज। बाबा कहता ना चार्ट, पहले वाला जो चार्ट होता था, वह कितने बजे उठे, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, इसके ऊपर अब धीरे धीरे हम मैच्योर बनते चले जा रहे हैं, हम बड़े होते चले जा रहे हैं। हमारे चार्ट की रूपरेखा भी बदलनी चाहिए। तो चार्ट में एक दिन हम ये चेकिंग करके, क्या मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बना हूँ? अगर दिल तख्त नशीन बना हूँ तो क्या ये चीजें मैंने सारे दिन में अनुभव किया? अपने आप को चेक करें, अपने आप का आंकलन करके चेक करके देखें, कोई चिंता फिकर तो नहीं। अगर चिंता फिकर हो गई तो मैं बाबा के दिल से नीचे उतर जाऊंगी। इसीलिए इन सारी बातों को चेकिंग करते हुए मैं 5-7 मिनट आपको और कमेंट्री के रूप में भी उस स्थिति का अनुभव कराना चाहूंगी। उसके पश्चात आप सभी क्वेश्चन आंसर में से पूछ सकते हैं। तो चलिए, अभी जो हमने संकल्प लिया, जो अभी हमने सुना, तो जो सुनने के साथ साथ हम उसको फील करेंगे। बाबा के दिल तख्त इतना विशाल तख्त है, उस विशाल तख्त पर विराजमान होने का हम सभी अनुभव करेंगे। तो मैं चाहूंगी जहां भी आप बैठे हो, सुन रहे हो, सब अपनी अपनी जगह बैठ करके आप सभी, जैसे मैं कमेंट्री के द्वारा आपको सुनाऊंगी, ऐसे आप उस स्थिति का अनुभव करना। तो उसके पश्चात आपको कोई भी आज के जो क्लास से संबंधित क्वेश्चन आदि पूछना हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर और गहराई से चिंतन और मनन करने की हमें आवश्यकता है। तो खास मैं सभी भाई बहनों को, शुभ्रा बहन को भी ये कहूंगी, शुभ्रा बहन अगर सॉफ्ट म्यूजिक हो सके तो चला दीजिएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मेडिटेशन कुछ 5-7 मिनट के लिए और इसको और डीपनेस में जाने का प्रैक्टिस कराऊंगी। हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। ओम शांति। मैं चमकता हुआ चैतन्य सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस मस्तक के मध्य विराजमान होकर कर्मेंद्रियों को चलाने वाली एक अभौतिक शक्ति हूँ।
मैं चेतना चमकता सितारा अपनी दिव्य रोशनी को पूरे शरीर में फैला रही हूँ। मेरा शरीर प्रकाशमय हो गया। ये भौतिक 5 तत्वों का शरीर लुप्त होता जा रहा है। रह गई मैं चेतना अपने सूक्ष्म चमकते हुए प्रकाशमय काया के साथ। जैसे ही मैं स्वयं को प्रकाशमय काया में महसूस कर रही हूँ, ऊपर की ओर सूर्य चांद तारागणों से पार सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा उनके मस्तक पे विराजमान शिव बाबा, मैं दोनों को सामने देख रही हूँ। मैं दिल से बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। प्यारे बाबा, आपने मुझे अपना दिल तक नशीन बनाया। कहाँ मैं पांव का धूल समझते थे, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे समान बनाया। पत्थर को पारस बनाया। आपकी दृष्टि से, आपके ज्ञान से मेरी सृष्टि बदल गई। मेरा शुद्धिकरण हो गया। मैं सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, सत्य, ईमानदार, वफादार बन गई। इन गुणों ने मुझे आपके दिल पे जगह दे दिया। बाबा, आपका दिल कितना बड़ा है, बेहद का है। आपने मेरे किसी भी कमी कमजोरी पे चित्त पे नहीं रखा। सब बातों को दया क्षमा के रूप में समाकर मेरे ऊपर रहम कर दिया। अपने दिल में जगह बना दी। ऐसे दिलाराम बाप के मैंने दिल में विराजमान होकर स्वयं को निश्चिंत, हल्का, बेफिक्र महसूस कर रही हूँ। मेरा सर्वोच्च भाग्य है, भगवान ने अपने दिल पे मुझे बिठाकर
संसार की सब बातों से, आकर्षण से, बंधन से, बुराई से मुझे मुक्त कर दिया। यही बाबा की मेरे ऊपर दया और कृपा है। बाबा, दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा योग्य बना दिया। बाबा से दिव्य दृष्टि लेते हुए जो कुछ मैंने पाया है, संसार की सब आत्माओं को देने के लिए वापस आकाश मार्ग से अपने स्थान पे पहुंच गई। आज से मैं वायदा करती हूँ, जिसके साथ भी मैं संबंध में आऊंगी, व्यवहार में आऊंगी, सच्चे और साफ दिल के साथ, साफ मन के साथ ही व्यवहार करूं। मैं खुद अपने दिल को भी देख रही हूँ। मेरा दिल साफ स्वच्छ होता जा रहा है। दिलाराम बाप के दिल तक नशीन में आत्मा सबको दिलाराम बाप का सही परिचय अपने व्यवहार से देती रहूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाह दीदी, वाह वाह बाबा वाह। दीदी, इतना भरपूर कर दिया आपने। लेकिन उससे पहले हम सबसे पूछते हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन हो दीदी से तो प्लीज पूछ लीजिए। सब बिल्कुल लगता है भरपूर प्रसन्न हो गए। चित्त हमारी शुभ्रा बहन की ऐसी पालना है, सबको प्रसन्न चित्त बना दिया। इतना प्रेम से, प्यार से। देखो, आप सभी भाई बहनें, आपको इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है। विदेश में बहुत कम ऐसे होते हैं जो मम्मा बाबा की पालना या दृष्टि, उनके संपर्क में रहे हुए ऐसे महान आत्माएं मिलते हो। हमारी शुभ्रा बहन ऐसा बाबा का विशेष इंस्ट्रूमेंट है। जब भी हमारे लखनऊ आती हैं तो मैं जरूर उनको इंट्रोड्यूस करा करके वो एक्सपीरियंस शेयर करती है। हमारे क्लास में आने वाले सभी भाई बहने बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, कैसे वहां रह करके, सबके बीच में रह करके बाबा के लिए एकदम समर्पित भावना और अपने पुरुषार्थ के प्रति, जैसे हमने बताया ना, सच्चाई और सफाई से अपने पुरुषार्थ के प्रति एकदम अवेयर। ये है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन हमारी स्थिति को बनाने के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए किसी का सहारा नहीं। हम अपने बलबूते पर, इतने दूर आप बैठे हुए हो भारत से, मधुबन से, अपने बलबूते पर, अपने दिल की सच्ची लगन के आधार पर हमेशा आप अपनी स्वयं की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए सोचते हो। साथ साथ आपसे जुड़े हुए सभी जो भाई बहनें हैं, उनके प्रति भी एक केयरिंग कैसे है। एक सच्ची रूहानी माँ की तो निशानी है, उनकी भी उन्नति कैसे हो जाए, उनकी भी अवस्था कितना अच्छी बन जाए, इसके लिए आप सोच करके मैं देखती हूँ। हमने कई भाई बहनों को आपने बुला करके इस प्लेटफॉर्म पे सब बच्चों को एक
रूहानी माँ बन करके जैसे बच्चों को वैरायटी चीजें देना, ये आपकी विशेषता है। तो आप सभी सुनने वाले प्यारे भाई बहनों को मैं यही कहूंगी, आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आपको मिला हुआ है। तो हमें भी जब भी शुभ्रा बहन से मैं मिलती हूँ, मुझे भी बहुत खुशी और प्रसन्नता होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके विशेष स्वयं के पुरुषार्थ को लेकर। आज का दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दूर बैठे हुए भी आपने हमें निमंत्रण दिया, अपने पास बुलाया, हमारे जो भी विचार थे, चिंतन थे, आप सबसे शेयर करने का। जैसे बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों में दान नहीं होता, ब्राह्मणों में सहयोग होता है। एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे पास ज्ञान का लेन देन, आपके पास जो चीज है हमने स्वीकार कर ली, हमारे पास जो चीज है वो आपको दे दिया। ऐसे आपस में ज्ञान का लेन देन करना, ये आपसी सहयोग है। और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। दीदी, आपका पैकेज जो था आज बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सब लोग बहुत ही ये लिख रहे हैं, कितना इंस्पायरिंग टॉक है, थैंक यू सो मच। इतने सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, तो उसको देख के ये लग रहा है कि सबको बहुत ही आनंद आया आपको सुनने में। क्लास सब लिख रहे हैं, वंडरफुल क्लास, क्लियर क्लास, वेरी इंस्पायरिंग क्लास। तो दीदी, आपने तो जैसे कहते हैं, आपने हमारी झोली ज्ञान के अनमोल रत्नों से भरकर हमें माला माल कर दिया। और आपने बिल्कुल ठीक बताया कि प्रभु का प्यारा वही बनता है जो कमल पुष्प समान न्यारा बनता है। तो ये 2 लाइनें याद आ रही थी बाबा के लिए हमारे को, कि पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं, पूछते हैं अपने दिल से हम कितने महान हैं, दुनिया जिसको ढूंढती है वो हम पर कुर्बान है। वाह 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 वाह। या तो बस ये सचमुच में बाबा कुर्बान है। दूर बैठे हुए बच्चे तो विशेष बाबा को विशेष अट्रैक्ट करते हैं, और उतनी ही दिल की लगन उनकी होती है। हमने भी देखा, अनुभव किया है। एक सैंपल तो आपको देखा है, और आपके साथ ही कुछ बहनों को भी हमने लास्ट ईयर देखा था, कैसे दिल की सच्ची लगन से खींच कर, क्यों, क्योंकि दिल में बैठी हुई चीज है ना, तो इसीलिए तो बार बार खींची चली खींचती आती है। तो है जी। ना, वही देखा हमने प्रैक्टिकल आप लोगों के जीवन से। बाबा के दिल में बैठे हुए दिलाराम भगवान भी आप पे कुर्बान है, सचमुच में। ठीक बात है ना शुभ्रा बहन, लॉकडाउन के समय में बाबा ने जैसे लक का लॉक खोल दिया, है ना, खोल दिया लकी दीदी, बन गए सारे, बिल्कुल है। खोल दिया। एंड अभी दीदी, तक आप लोग ही इंस्पिरेशन है हमारी। सच बात तो ये है कि जब दोबारा ज्ञान में आए तो आपको तो हमने तब से देखा ही हुआ है, और आपको तो हमने इतनी क्वालिटीज, एक्चुअली बहुत बहुत सीनियर्स हैं, लेकिन जितनी क्वालिटीज आपके अंदर एक संग है, ये आपकी इतना दृष्टि है ना, आपकी नहीं नजर दीदी, है यहाँ तो ये तक। तो सच है। एक मिनट में और भी शेयर करना चाहूंगी जी दीदी। सुनने वाले भाई बहनों को। आप सबको पता होगा, शुभ्रा बहन की मम्मी यहाँ रहते हैं, उषा मित्तल। हम लोग लखनऊ में आकर के सेवाओं की शुरुआत की थी, खास स्पेशली अभी जिस सेंटर पे मैं रहती हूँ गोमती नगर में, इनके घर से शुरुआत हुई थी। हमारी उषा मित्तल और डॉक्टर एसपी मित्तल जी, दोनों जैसे कि हमें माता पिता की तरह से शुरुआत, सेवाओं की शुरुआत में दोनों का बहुत प्यार, बहुत सहयोग मिला। तो ये दोनों गुप्त, इनके मम्मी पापा दोनों ही ऐसे गुप्त रतन थे, जो गुप्त रीति से बाबा के कार्य में मददगार बने। आज हमारा ये ईश्वरीय वृक्ष इतना वट वृक्ष बनकर वृद्धि को पाया है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ऐसे परिवार की हमारी शुभ्रा बहन है। आज भी मम्मी इनकी उषा बहन हमारी मददगार है। उनके घर में भी गीता पाठशाला चलती है। कल ही में, इत्तेफाक की बात थी, कल ही मैं जा करके उनसे मिल करके आई थी, अचानक कहीं गई थी। तो अभी भी एकदम इतना फुर्तीली, उमंग उत्साह में रहना, और बाबा की सेवा के लिए हमेशा, थोड़ी सी भी उम्र कम बढ़ गई इसीलिए थोड़ा सा मोमेंट कम होगा, लेकिन हमें याद है सेवाओं की जब शुरुआत की थी, इतना फास्ट गति से आना जाना, पूरा हर प्रकार से सहयोगी बनकर के
सेवाओं को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा है। तो आज जो इतना बड़ा वट वृक्ष उनके सहयोग से ही संभव है, उसी का एक सैंपल हम शुभ्रा बहन के रूप में देखती हूँ, कैसे वो जो आत्मा में पड़ा हुआ ज्ञान का बीज आज फलीभूत होकर के आज विश्व की अनेक कोने में बाबा का संदेश देने के लिए निमित्त बन गया है। तो मैं फिर से आप सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने एक सुंदर सा अवसर दिया। भल अमेरिका इतना दूर है, लौकिक में तो दुनिया इस रूप में तो मैं आ नहीं पाई अमेरिका, लेकिन बाबा ने साइंस के साधन ऐसे इतना सुंदर दे रखा है, दूर बैठे हुए भी इतना नजदीक हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा को भी थैंक्स, आप सबको भी, साधनों का भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू। दीदी थैंक यू, आपने इतना लेट भी टाइम निकाला हमारे लिए, हमने 1 घंटा मूव कर दिया लास्ट वीक से, आप फिर भी मान गए। आपका हमें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे हम जब इस एंजल को देख रहे थे तो हमें आपकी याद आ रही थी। हम आपको या आप बाबा का स्वीट एंजल हम आपके लिए लेके आएंगे जब अगली बार लखनऊ आएंगे। और इसके साथ हमें एक अनाउंसमेंट भी करना है कि हमारी रेगुलर संडे को जो मेडिटेशन की भट्टी चलती है 9 से 11 कल फिर होगी, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा 9 to 11। और उसके अलावा wanted to thank Srilata sister for all her help to make it possible. So thank you all for joining. Thank you family, Ohio family, Indiana family, Michigan, थोड़े बहुत सब तरफ से जुड़े हैं। So दीदी आपकी शक्ति से काफी लोग आ गए इसमें, थैंक यू सो मच। एंड मम्मी भी शायद ज्वाइन है, तो ओम शांति। ओम शांति दीदी। So Om Shanti to everyone.